a lady with magic in her hands, abundance of talents, and an encyclopedia of knowledge cannot be expressed in simple words and a few slides. Here, we remember her with her diverse personas, talents, and how she inspired the best in all of us. Born in Allahabad to the renowned Narayan family, the youngest of the Narayan sisters, she was quick to become everyone's favorite with a charming style and flawless talents. While all the sisters made a mark for themselves, Mukti chose the medical field and became a physician. She got married to Dr. Atul, a surgeon in Meerut, in 1982 and started a new journey of her life. They had 3 beautiful children. After her marriage in 1982, she, along with her husband, started their medical journey as simple visiting practitioners to starting their own nursing home, the Kamal Nursing Home. Later, they faced mobs, riots, and much more. But with their hard work and determination, they soon established the first multi-speciality hospital, the Lokpriya Hospital, in 1989. The threats, constant attacks by anti-social elements forced Dr. Mukti to shift to Allahabad for the safety of her children and also to take care of her mother, where she started the Jagat Narayan Clinic and soon became a renowned and successful physician of Allahabad. It is said, nothing big is achieved without passing the test of time, facing and fighting struggles and proving oneself. The journey from 1982 to 2021 was not easy, but here is a glance on what she has achieved. Swami Vivekanand Subharti University in Meerut, a private university spread in an area of about 250 acres with over 18 colleges and 250 programs. Each program being recognized by the requisite council, while each recognition required effort, days and nights together, running around sleepless nights and struggles undefined. The Chhatrapati Shivaji Subharti Charitable Hospital, an 1100-bedded hospital in Meerut. A 350-bedded Lokpriya Hospital in the Meerut city. They started another university in Dehradun in 2011, and in spite of being surrounded by controversies and the usual struggles, they went further ahead to start another campus with a 300-bedded charitable hospital, the KKV Memorial Buddhist Charitable Hospital, which was inaugurated in 2021. Under her realm, many rural schools, health centers were also established and are running successfully. The Subharti Group also have other projects running like the Engineering College in Bijnor, the Beehive Group of Institutions, the Subharti Media House with the Subharti Channel and Prabhat Publications. The charm of the university, no one could remain undazzled by her charisma and purity of heart. Her humbleness, values, and unfathomed show of culture won hearts of anyone who would meet her. Owing to the same, she won many awards and titles. Also, the title of Sangamata in 2018. She was limitless, a perfectionist, not only with her academics, not just as a teacher, but in all fields. She was the perfect amalgam of culture, modernity, art and skills, balance of work and home. Here is a glimpse of the beautiful artworks made by her, displaying the different forms of Indian art, exhibiting her expertise in all of them. She designed saris, clothes, made designer artwork out of rejected pieces of furniture and much more. To compile all her work and to give a platform to all her loved ones, a website has been created in her name, www.muktibhatnagar.com, wherein you can leave a note on a special memory with her or a word in her memory. Many of us have heard her songs. She was a musician with a nightingale-like voice. Here is a glimpse of few of her songs.
She could dance on any beat and energize any celebration with her presence. And what a performer she was. This is just an example of one of her performances she gave at the Sangeet of her daughter. The gatherings would wait to hear her speech. She was a mesmerizing orator. आज का दिन बहुत मुबारक है, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। The writer, the composer. She wrote a few songs, got them copyrighted, and also the Subharti song. She was the planner and designer of the landscape of both the universities. The lush green lawns, the beautiful trees, the lovely flowers, and thus the chirping birds are all owed to her dedication, love, and undivided attention towards the plantation and their care thereafter. She was the best wife, unparalleled mother, and the most doting grandmother. She has left us today with a vacuum which can never be filled, with a message to celebrate life and live each day as it comes, and to have an unstinted faith in the Almighty. Jai Hind. मेले में रोए तो केले में रोए, मेले में रोए सुस्की दे दे रोए रे। मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी जो मैं डॉक्टर मुक्ति भटनागर मैम को समर्पित करती हूँ। स्वभाव शांत यूँ सागर सा, ममता परिपूर्ण यूँ गागर सा, शिक्षा का कोई ना अभिमान दिया, कितनों को जीवन दान दिया। हम शब्दहीन हो जाते हैं, गुणगान आपका गाते हैं, नहीं शब्द अलौकिक कोई है, नहीं वाक्य अलौकिक कोई है, केवल यह प्रेम समर्पित है, इस दिव्य स्वरूप को अर्पित है, इस दिव्य स्वरूप को अर्पित है। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो स्वयं एक संस्था बन जाते हैं। ऐसी ही थी हमारी डॉक्टर मुक्ति भटनागर मैम। अभी अंधेरा हो, दीप तो जलाता चल, रास्ते चमक उठे, रोशनी दिखाता चल, जहाँ भी अंधेरा हो दीप तू जलाता चल, रास्ते चमक उठे, रोशनी दिखाता चल, जहाँ भी अंधेरा हो। एक ऐसी दुनिया की रचना हमको करनी है, एक ऐसी दुनिया की रचना हमको करनी है, सुभारत बनाता चल, सुभारत बनाता चल। एक ऐसी दुनिया की रचना हमको करनी है, हीन दुखियों की सेवा हमको करनी है, सेवा हमको करनी है। जातियां न जिसमें हो दुनिया ऐसी रचता चल, के मेले में एकता फैलाता चल, जहाँ भी अंधेरा हो। विश्व के ललाट पे तिलक हमको बनना है, विश्व के ललाट पे तिलक हमको बनना है। सुभारत बनाता चल, सुभारत बनाता चल, विश्व के ललाट पे तिलक हमको बनना है। शारदे के चरणों में जीवन होम करना है, जीवन हमको करना है।
में धन्वंतरि का दूत बन व्याधि को हटाता चल, भास्कर का तेज बन तिमिर को मिटाता चल। जहाँ भी अंधेरा हो दीप तू जलाता चल, रास्ते चमक उठे रोशनी दिखाता चल। जहाँ भी अंधेरा हो दीप तू जलाता चल, रास्ते चमक उठे रोशनी दिखाता चल। जहाँ भी अंधेरा हो तपस मिटा दे दीप जला दे, तपस मिटा दे दीप जला दे। ओ मेरे साथी रे, ओ मेरे साथी रे, ओ मेरे साथी रे। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए राम। जय हिंद। डॉक्टर मुक्ति के बारे में आते हैं। डॉक्टर मुक्ति के बारे में मैं बोलना कभी भी प्रेफर नहीं करता, क्योंकि उससे उनकी याद वापस आती है मेरे को। और माता पिता को क्या याद नहीं किया जाए? नहीं, बिल्कुल याद किया जाए। प्रॉब्लम क्या है कि डॉक्टर मुक्ति और मेरा रिलेशन जो था ना, माता पुत्र से ज़्यादा एक दोस्त का था। मेरे दिमाग की जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ा अजीब सी चलती है, और उनकी और मेरी बड़ी मैच करती थी। कई बार ऐसा होता था जब आप जो बिल्कुल पक्के दोस्त होते हैं वो जब साथ में होते हैं तो आपस में उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 10 लोग बात कर रहे हैं पर उन दोनों को पता है क्या बात चल रही है, वो उसने बोलना नहीं है, अगला समझ गया। तो मैम का और मेरा रिश्ता इस तरीके के साथ का था कि डॉक्टर मुक्ति के बारे में जो लोग उनको जानते हैं उनको पता है कि मेरे शब्द इतने नहीं हैं कि मैं उनके बारे में बता पाऊँ, और जो लोग नहीं जानते उनको भी ये पता होना चाहिए कि मेरे शब्द इतने नहीं है कि मैं उनके बारे में बता पाऊँगा। जय हिंद। फाइन आर्ट्स टर्म ही ऐसा है जो सिर्फ आर्ट्स नहीं है। आर्ट्स एक बहुत ही वाइड टर्म है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द पेंटिंग्स जो आज यहाँ पे लगी हुई हैं। इट इज़ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसमें हर तरीके का म्यूज़िक, कल्चर उन सबको रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ कल्चर, इट इज़ एनिमेशन, इट इज़ सो मैनी अदर थिंग्स। उसी को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए इस डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया गया। आप सब ने नारियल देखा है। सब लोग 2 लेयर की बात करते हैं, बाहरी लेयर, टफ लेयर, और अंदर की लेयर एक सॉफ्ट लेयर। लेकिन मैं उससे बाहर लेयर की बात करूँगा। नारियल जो होता है जटा से घिरा होता है। तो हमारी डॉक्टर मुक्ति का जो व्यक्तित्व था वो बड़ा कॉम्प्लेक्स था। वो हर एक किसी की समझ में नहीं आती थी। उन सबको लगता था कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जैसा कि कृष्ण ने बताया, एक बेटा होने के नाते भी वो कभी उनको मित्र की तरह पाते थे, कभी एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह पाते थे। अभी डॉक्टर कृष्ण ने आपके साथ शेयर नहीं किया कि जब वो एज ए स्टूडेंट अपने सहपाठियों का पारा झेलते थे अपनी मम्मी के प्रति, वो उन्होंने बताया नहीं आज। वो बहुत ही सख्त टीचर भी होती थी। तो जो नारियल होता है ना, उसका जो पहले वाली लेयर होती है वो होती है जटा वाली। तो वो उसको आपको लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। तो ऐसा ही हमारी मैडम थी, लेकिन वो बहुत ही सरल व्यक्तित्व की थी। कि रिश्वत कभी उधार लेके नहीं देना, क्योंकि उन्होंने कहा कि काम हो ना हो, तुम्हारी तो रिश्वत गई, रिश्वत कभी वापस मिलती नहीं। तो अगर तुमने रिश्वत दे दी, तुम्हारे पे तो कर्जा चढ़ गया, तुम्हें तो उस आदमी का जिससे भी तुमने पैसा लिया कर्जा उतारना पड़ेगा, और वो मिलेगा है नहीं तुम्हें। तो इसलिए कभी भी कर्जा लेकर रिश्वत मत देना, ये गांठ बांध लो। तो हमने इरादा छोड़ दिया, क्योंकि हमारे पास था ही नहीं। मुक्ति जी उस दिनों इलाहाबाद में थी, तो
तो 15 अक्टूबर को उनकी मेरी सुबह फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने कहा अतुल क्या हुआ, तुम कैसे हार मान गए? मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ भाई, मेरे से 75 रुपये मांगे गए थे, मेरे पास थे नहीं। मैं डॉक्टर SSL श्रीवास्तव के पास गया, उन्होंने मुझे ऐसी एडवाइस दी है, तो मैं क्या करूं? मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया, मैंने छोड़ दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा, तो डॉक्टर मुक्ति ने मुझसे कहा कि अतुल ये तो तुम्हारा सपना था कि तुम ये कहते थे कि मैं जाता हूँ, गांव-गांव जाता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, मुझे डॉक्टर नहीं मिलते, बड़ी मुश्किल से मुझे लोगों को समझाना पड़ता है कि चलो गांव चलो। और तुम्हारा ये सपना था कि अपना मेडिकल कॉलेज होगा, उसमें डॉक्टर्स बनेंगे और वो तुम्हारे साथ गांव में जाया करेंगे, तुम्हें किसी के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ने पड़ेंगे। उस सपने का क्या होगा? मैंने कहा सपने का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सपना गया, ख़त्म। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास सब कुछ तो है। मैंने कहा मेरे पास क्या है, 75 रुपये चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही और वो मेरे जीवन में आज भी उनके वो शब्द ऐसे हैं कि जैसे किसी ने पत्थर के ऊपर, पहाड़ के ऊपर एनग्रेव कर दिया हो। अतुल मैं तो हूँ ना। आते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर अतुल कृष्ण सर को कि वे आए और हमें प्रेरित करने के लिए अपने शब्द प्रस्तुत करें। जय हिंद। मैं अपने अतिथियों को संबोधित करने से पहले तो काजल को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आज के इस कार्यक्रम का संचालन किया। और मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित तो तब हुआ जब इन्होंने 1990 का स्पष्टीकरण देते हुए और इन्होंने बता दिया कि आयु अवश्य 90 साल की है, लेकिन इन्होंने 19 इसलिए कहा कि जो इनमें ऊर्जा है और जो ललक है काम करने की वो एक 19 साल के जवान के तरह है। बहुत बहुत साधुवाद काजल आपको। आज की इस सभा के मुख्य अतिथि रामकृष्ण गोयल जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथिगण डॉक्टर M.N. झा साहब जो कि FRI के एक साइंटिस्ट हैं, और डॉक्टर श्रीमती शशि झा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राइंग एंड पेंटिंग MKP डिग्री कॉलेज हैं। हमारे बीच में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे अतिथिगण, हमारे विद्यालय के कुलपति महोदय, उप कुलपति महोदय और समस्त शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, इस कार्यक्रम को आयोजित करने में जितने भी यहाँ पर लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं, मैं सबको आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ। आज ये जो कार्यक्रम है ये डॉक्टर मुक्ति का जो जन्म दिवस है, उसकी जयंती तो अपना है ही, लेकिन आज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक उनके ही किसी भक्त ने, उनके किसी प्रेमी ने एक छोटी सी स्टैचू उनकी बस्ट के रूप में हम लोगों को यहाँ पर भेंट में दी थी, और उसका आज यहाँ पर हम लोग यहाँ उसको स्थापित कर रहे हैं और उसका अनावरण आज हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण एक ही है, अब वो डॉक्टर मुक्ति हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, जो सामान्यतः होता है कि जब कोई जना चला जाता है इस नश्वर शरीर को छोड़कर, तो सदैव हम लोग उसके लिए अच्छी अच्छी बातें बोला करते हैं, चाहे वो उसमें बातें अच्छी हों अथवा नहीं हों, लेकिन हम उनकी तारीफ़ किया करते हैं। और सामान्यतः जो भी संस्थान होते हैं वो ये कहा करते हैं कि ये सब संस्थान उन्हीं की वजह से है। ये एक फॉर्मेलिटी है जो लोग निभाते हैं, सभी जगह निभाते हैं, तो उसमें हमें ये नहीं पता चलता कि सच क्या है और सच क्या नहीं है। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम डॉक्टर मुक्ति के लिए बात करते हैं कि वो इसकी संस्थापिका हैं, तो ये अकाट्य सत्य है और उसका मैं ही बता सकता हूँ, और आप लोगों को नहीं पता होगा कि आज जो शुभार्थी यहाँ पर आप देख रहे हैं वो अच्छा रूप, उससे भी अच्छा रूप, उससे भी अच्छा रूप वो अपनी जगह, लेकिन उसका जन्म ही डॉक्टर मुक्ति के कारण हुआ। और वो मैं एक छोटी सी आपको घटना बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1994 में सबसे पहले मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने ये घोषित किया कि अब हम प्राइवेट संस्थाओं को कॉलेजेस खोलने की अनुमति देंगे हायर एजुकेशन में। और उस समय हमने भी एक मेडिकल और डेंटल कॉलेज खोलने के लिए एक आवेदन उत्तर प्रदेश सरकार को दिया, और 10 अक्टूबर 1995 को एम्पावर्ड कमेटी के सामने हमारा
केस लगा था और उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन थे जिनको देना है कि नहीं देना है वो निर्णय होना था। और हमें पूरा विश्वास था क्योंकि मेरठ में हम ही एलिजिबल थे, जिसके पास अपना अस्पताल था, जिसके पास अपना डॉक्टर थे, सारी विधा थी, सब कुछ था, तो हम ही एलिजिबल थे। लेकिन 10 अक्टूबर को जो फैसला आया उसमें हमें रिजेक्ट कर दिया गया, हमें अनुमति नहीं दी गई। अब हमने भागदौड़ करी कि भाई हमें क्यों नहीं अनुमति दी गई। तो बात बड़ी सिंपल सी थी, मायावती जी की सरकार थी और उन्होंने कहा कि भाई, उनके जो एक मुख्य सचिव थे जो इस काम को देख रहे थे, उन्होंने कहा आप आए नहीं हमारे पास। अगर आप आते तो हमें पता चलता ना कि आपके पास पैसा वैसा भी है, बनाओगे कहाँ से। खाली अच्छा होने से थोड़ी ना काम चलता है, कागज़ से थोड़ा ना बनते हैं इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन। पैसा होना चाहिए ना जेब में, आपने पैसे का प्रदर्शन करना चाहिए था ना। और पैसे का प्रदर्शन कैसे होता है कि आपको हमें देना चाहिए था। तो हम गए नहीं तो हमारा वो निरस्त हो गया। खैर अब हम गए, हमने कहा सर आप बता दीजिए। तो अब चूँकि वो बात पुरानी हो गई तो मैं उसको खोल के भी कह सकता हूँ। तो हमसे 75 रुपये मांगे गए। आगे आपको जो लगाना वो आपकी श्रद्धा है, आप कुछ लगा सकते हैं, है ना। उस समय 1995 की बात है ये। तो हमसे 75 रुपये मांगे गए कि साहब आप 75 रुपये दे दीजिए तो आपका कार्य हो जाएगा। अरे क्या बात है, जो आजकल तो आप देखिए जो नर्सिंग होम्स में भी जो मरीज़ को वेंटिलेटर पर डाल के जीवित कर देते हैं, तो क्या दिक्कत है आपकी। एक हमने जो एप्लीकेशन कैंसिल तो करी है, वो उसको रिवाइव कर देंगे। अब हम वापस आ गए, हमारे गुरुजी थे डॉक्टर SSL श्रीवास्तव, हम उनके पास गए। हमने उनसे कहा कि साहब ऐसे ऐसी बात है, क्या करेंगे। उनका पहला प्रश्न था, क्योंकि वो मेरे घर की स्थिति जानते थे कि मैं एक शिक्षक का बेटा था और मैं प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट की थी, ले दे के किसी तरीके से अस्पताल बना लिया था। तो पहला उनका प्रश्न था, क्या तो ये बताओ कि तुम ये पैसा है तुम्हारे पास। तो मैंने कहा पैसा तो नहीं है। तो बोले तो इस सवाल क्यों पूछ रहे हो कि जब है ही नहीं तुम्हारे पास तो दोगे कहाँ से। मैंने कहा लेकिन मेरे चाहने वाले बहुत हैं, उधार दे देंगे मुझे, मैं उधार ले लूँगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जीवन में एक बात याद रख लेना, और आप लोगों के लिए भी कह रहा हूँ,